Assalamualaikum. Sorry for being late. I understand most of you would be waiting. I was finishing my A2 class. I had already started a topic which I didn't want to leave in the middle because I also was having fun. So, thank you, Ganesh. Walaikum assalam. Who do we have with us today? We have Ashar Amir, we have Abdullah Yunus, we have Abdullah Nawaz, we have Azhar Khalid, we have Bushra Bhutto, Danish. Hamza Ansari is here, Haris Baloch, Hassan Ali. Wow, Hassan Ali, nice name. Reminds me of the cricketer though. Hassan Rehan, Khatija Rafiq, Mahid Amin Mahmood, Mohammad Ibrahim, Huria as well comes someday, doesn't come someday. Musa Hasnain, Samalia Shahid, Shahid Khan, Sayyida Simal Rizvi, and thank you. Acha, guys, I understand that today is a day where the namaz is going to directly come in between our class. If something like this happens and you need to go for break, आप प्लीज नमाज के लिए चले जाइएगा बगैर बताए और फिर वापस आ जाइएगा। इतना मुझे आप पे भरोसा है कि आप जो है वो अपना टाइम अल्लाह के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज गो ऑफर योर नमाज एंड कम बैक। You don't have to do anything. You just have to go quietly, offer your first and come. That's it, right? So having that out of the way, let's begin with what we were doing. कल जो है वो हमने बड़ी मजे की बातें की थी आपसे। आज मुझे आपसे सर थ्रेशोल्ड आ गया ओ लेवल का। Really, I didn't know क्या है ओ लेवल का थ्रेशोल्ड। Should be interesting. Otherwise I'll check या मुझसे पूछ रहे हैं मुझे बता रहे हैं इन्फॉर्म कर रहे हैं। I'll ask the people 12 को आना था for international threshold and international numbers also but कि आज तो रिजल्ट आ रहा है बाकी ओ लेवल्स वालों का दुनिया में जो है। जून 2021 का तो आ चुका है। हाँ पहले आ गया था। यू राइट, आई अपोलोजाइज। एनीवे, खैर जितनी देर में अशर भाई हमें जो है वो इंसाइट देते हैं, ज़रा थोड़े से सवालात हो जाएं, थोड़ी सी चीज़ें हो जाएं ताकि हमें पता चले कि क्लास हमारे साथ है। वैसे आई एम नॉट टू कीन ऑन टेकिंग। Yeah, so guys, let me show you the screen which I have. Ashar Amir, Abdul Khan, Abdullahi Khan, Bushra Bhutto, Danish Farooq, Hamza Ansari, Hassan Ali,
Hassan Rehan, Mahid Amin, Mariam Rafiq, Mohammed Shahid Khan, Mohammed Walid Marketia, Musa Asnain, Rahim Khan, Samavia Shahid, and Simal Rizvi. Thank you so much. And tips with Mahir. I'm not sure what your name is, buddy. Thank you so much for submitting this. But those people who have not done so, I would be grateful if you not only join the group, but you do this so that I can check and I can return your assignments and see take kya hai. So tips with Mahir is Mahmood. Okay, good. Thank you, Manu. Thank you for updating it also. And इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको मैं मार्क्स दे दूंगा. जिन्होंने नहीं दिए अभी तक प्लीज वो मुझे मेरे साथ ताउन कर लें और अपना जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर लें. We talked about the basic economic problem, right? कल हमने एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को खैर बात कर दिया था और हमने बोला था आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की थी, पब्लिक और प्राइवेट, और इसको हमने अच्छे से आपको समझा दिया था. Am I correct? So the class is completely up to date. Okay? There is nothing which you don't understand and you are with me spot on. Goods and services बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? Goods and services बनाने के लिए आपको चाहिए resources. Resources and resources are limited. Blah blah blue blue. Resources जल्दी से देख लेते हैं. Land, labor, capital, enterprise. Capital. So land, labor, capital, and enterprise. Whenever we have to analyze resources, today's class is about analyzing these resources. Excuse me. Most of the students who are from the O levels in economics, they have done this. Students who are studying economics for the first time, उनको हम समझा देते हैं कि resources को evaluate कैसे किया जाता है, right? पहले जब हम लैंड की बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंड क्या है. ये तो हमें पता है लैंड क्या है. लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि एवरीथिंग व्हिच इज फाउंड इन नेचर इज लैंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स. इट इज नॉट ओनली द प्लेस व्हिच इज लैंड, एवरीथिंग एल्स अकॉर्डिंग अराउंड इट इज आल्सो लैंड. Charind, land, Parinth, land, boats are land, right? And other things also. For example, mines are land, diamonds are land, minerals are land. So everything which you find on earth, below the earth, in the ocean, above the ocean, below the ocean, right? Everything in the atmosphere and beyond. जिसके अंदर इंसान का इंटरवेंशन नहीं है, जो इंसान की मदद से नहीं बने, उनको कहा जाता है लैंड. ठीक है, मैं तेजी से जाऊंगा. इफ देयर इज एनी वे एनीवेयर व्हिच यू डोंट एनीथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्टॉप मी राइट देयर एंड देयर. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर लैंड. अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लैंड. तो यार ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कैसे बढ़ा सकते हैं हम? I want to increase the quantity of natural resources. Everyone wants to have more resources. So I want to have more land. Okay, I want to have more land. What is the way of doing it? So yeah. So let's ask Manu. Manu, madam, you can use your chat option and you can tell me कि मेरे पास एक natural resource है fruits. How can I have more fruits than I have today?
Plant more trees. Good, shabash. So there are certain natural resources with which by planting more trees, by having better irrigation units, right? By planting crops in a place where there is more rain, I may have more crops, और productivity इस तरीके से बढ़ेगी, production भी बढ़ेगी, और the quantity of the natural resources will increase. Fine, but Manur, I have another question to you. And this time is that I have oil in the economy. Now I want to increase the oil in the world. How can I increase the oil in the world? How can I increase the oil which is available in the world? Sir, repeat the question. Okay. How can I increase the quantity of oil in the world? Bushra Bhutto, you can also write on chat. Improving mining techniques. I will be getting more oil, but the quantity of oil in the world will remain the same. Oil तो जमीन के अंदर है, मौजूद है, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? आपने माइन किया हो नहीं माइन किया हो, तो आपके पास नहीं आया अभी तक. आपने माइन किया हो नहीं माइन किया हो, ज्यादा अच्छा रिफाइन करके तो उससे ऑयल कैसे बढ़ेगा? आपने 4 छन्नियां लगा दी, पेट्रोल उसके अंदर से छान छान के आप लेती जा रही हैं, तो ऑयल कैसे बढ़ेगा? आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास से ऑयल खत्म होता जाएगा, आपके पास कैसे बढ़ेगा? खतीजा रफीक साहिबा, नहीं, आई अंडरस्टैंड, दोज हु आर आंसरिंग, आई अंडरस्टैंड, बट मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, आई वांट यू, अपने दिमाग को आपने ट्वीक करना है. सारा का सारा मेरा फोकस इस बात पे है दैट यू गेट गुड इन इकोनॉमिक्स एंड यू आर एबल टू स्कोर ऑन योर ओन. We cannot increase the quantity of oil in the world. What you have been telling me is how do I increase the quantity of petrol, जिस जो आता है ऑयल से, मगर ऑयल किस तरीके से? Why? Because there is a limited supply of oil. Excellent. बेटा, accelerate the production of oil from a well से quantity तो नहीं बढ़ेगी ना हमजा अंसारी, ऑयल तेजी से आ जाएगा आपके पास, बड़ी खुशी की बात है. उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी पूरी दुनिया में? देयर आर 200 बैरल्स ऑफ ऑयल, लेट्स से आपका वेल, आपका जो ड्रिल है वो 10 बैरल्स ऑफ ऑयल निकालता है. आपने एक ऐसा जबरदस्त बैरल बनाया, ड्रिल बनाया जो 50 बैरल्स ऑफ ऑयल निकालता है, तो 4 दिन में सारा का सारा ऑयल आपके हाथ में आ गया. तो दुनिया में से तो खत्म हो गया ना भाई. दुनिया के अंदर कैसे बढ़ रहा है ऑयल? दुनिया के अंदर नहीं बढ़ा. इसका मतलब ये है कि मेरी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जस्ट होगा, the first category very simply is renewable resources. If I consume these resources, they can be grown back again, they can be supplied again, उनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है. But there are certain resources which can never grow back. There are certain resources, natural resources, which can never grow back. They are known as non-renewable resources. Non-renewable resources. क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ेगी माहिद, ऑयल की कभी भी ऑयल की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी. अल्लाह ताला ने जितना फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स की डीके से जो बना है वो ऑयल है, फॉसिल फ्यूल. सो अब हम जितना उसको एक्सकवेट करेंगे, निकालेंगे, जितना हम उसको ड्रिल करेंगे, वो ऑयल हम कंज्यूम करते जाएंगे, लेकिन ऑयल की क्वांटिटी दुनिया में मजीद नहीं बढ़ेगी बेटा. दैट इज व्हाई यू आर एट द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ ऑयल. इसीलिए तो ये सारा ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पंगा है. Why would we be using CNG? Why would we be using solar? Why would we be using hybrid? Why would we try to even run our car on electricity, जिसके ऊपर गाड़ी 60 या 100 miles per hour से ऊपर नहीं जाती? The only reason is
that you are trying to look for sources in which the energy can be regrown, which can be resupplied. Petrol is a oil is a non-renewable thing. So yeah, the quantity of the natural resources can be divided into two very unique and very distinct categories. One is a renewable resource, the other is a non-renewable resource. Okay, so renewable resource में आ गया fruit. आपने तोड़े, आम के पेड़ के ऊपर दोबारा आम आए, अगले सीजन आपने इंतजार किया और मजे उड़ाए, ठीक हो गया. उसी तरीके से आपका शुगर केन है. शुगर केन की मैं मिसाल दे रहा हूं, उसको द प्रोसेस बाय विच यू गेट शुगर इज नोन एज रेटूनिंग. शुगर केन इज बेसिकली अ शूट. उस पौधे का जो रूट वाला पार्ट होता है वो जमीन के अंदर होता है. व्हाट यू डू इज, आप जो है जब शुगर केन बड़ा होता है तो आप उसको रूट्स की तरफ से काट देते हैं, शूट आपके हाथ में आ जाता है. पौधा का जो रूट वाला हिस्सा है वो जमीन के अंदर ही रहता है. अगले साल वो दोबारा बड़ा होता है और शूट दोबारा ग्रो करता है. आप उसको दोबारा काट के शक्कर इस्तेमाल करते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है रिटूनिंग. इट कैन बी रीग्रोन अगेन. वुल शीप से आता है. आप एक दफा शीप को शेयर करते हैं, शेव करने को कहते हैं शेयर. यू डोंट शेव अ शीप, यू शेयर अ शीप. तो आप शीप को शेयर करते हैं, SHEAR. शेविंग भी कहते हैं, मगर बेसिकली द वर्ड टर्म इज शेयरिंग. आप शीप को शेयर करते हैं, उससे आपको वुल मिलती है. तो ऐसा मतलब थोड़ी कि वो शीप बगैर बालों के रहेगी सारी जिंदगी, नहीं. वो दोबारा रीग्रो करते हैं, वो दोबारा रीग्रो करते हैं. तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, वेजीज, ठीक है. और वेजीज के मैं मिसाल आपको दे चुका हूँ. वुल, कॉटन, राइट. कॉटन का पौधा जो है, आप एक दफा उसको प्लग करते हो, दोबारा फिर जो है वो उसके अंदर से फसल निकलती है. वीट, बिल्कुल जी, इस तरह की बात की जा सकती है 100%. फिशेस आप जो है वो फिश करते हो और थोड़े अरसे के बाद फिश दोबारा रीग्रो कर जाती है. उसके जो बच्चे हैं वो दोबारा अडल्ट फिश आ जाते हैं, यानी कि द सप्लाई ऑफ फिश कैन इंक्रीज, राइट. तो फिशेस. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस गुड्स एंड सर्विसेज which cannot grow back again. So all your mines, mostly all your mines, your gold, your diamond, your palladium, your iridium, right, your petrol, right, your oil, sorry, not petrol, your oil, they are all non renewable sources. यानी कि ये दोबारा ग्रो नहीं कर सकते. जितना आप ऑयल कंज्यूम करेंगे दुनिया में से ऑयल खत्म होती जाएगी, वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी. इसीलिए तो यू आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ. अच्छा, इसको माइंस की जगह पे कोल कर देते हैं, ये आसानी होगी, ठीक है. प्लूटोनियम जितना दुनिया में आ गया वो आ गया, जितना यूरेनियम आ गया वो आ गया. अब आप उसको एक्सप्लोर करके, जी राइस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एब्सोल्युटली हमजा, वेरी वेल डन. सॉरी, रिन्यूएबल रिसोर्स, सॉरी, ठीक है. नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. आई थिंक ट्रू. मुश्ता, वेरी नाइस, बड़ी मेहनत की आपने. गैस, ठीक है. दुनिया की सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स किस मुल्क के पास हैं? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? आज का सवाल. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल, एब्सोल्युटली, सच एज सोलर आल्सो एंड विंड आल्सो. गैस, दुनिया की सबसे बड़ी गैस की कुव्वत कौन है दुनिया में? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रूवन गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? प्रूवन का मतलब है शनाख्त हो चुकी है. रशिया, वेल डन. Thank you, Abdullah, or thank you, Google. Russia, and that is why Russia is a superpower, because it has one of the resources to run the world. You understand? So the political might or the diplomatic might or the economic might comes from resources. That is why, beta, the resources are so important. और ये जितनी जंग होती है वो resources पर होती है, वो रिसोर्सेज पर होती है. इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर्स हैं वो पानी के ऊपर है,
ग्लेशियर्स के ऊपर हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी अपनी जगह पर है, आई एम नॉट सेइंग कि आइडियोलॉजी पे नहीं है, बिल्कुल है। बट बेसिकली जो जहाँ के ऊपर आपके प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो रशिया एक ऐसी चीज पे बैठा हुआ है जो कि कम होती जा रही है, उसके पास से कम होती जा रही है, तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड? हाफ ऑफ द यूरोप रन्स ऑन रशियन गैस, half of the Europe. That is why if America does not like something which Russia has done, यूरोप की सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि रशिया आंखें दिखाता है, बोलता है क्या, ये देखो अच्छा बच्चू, मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये देखो ये रही गैस की पाइप और ये रहा मेरा हाथ उसके टैप पे, और ये मैं कर रहा हूँ बंद, और ये तुम्हारी पहली फैक्ट्री ओ बंद हो गई, ये देखो तुम्हारी दूसरी फैक्ट्री बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। ये करता है वो, यू अंडरस्टैंड? और कहता नहीं तो कर सकता है। So always remember that economics and political power go hand in hand. Is sunlight renewable? Absolutely, sunlight is renewable because you can consume sunlight again, you can store it and then you can reconsume it. जितना आप कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे वो कम नहीं होती, ठीक है। वो एक अलग बात है कि is the sun dying or not, that's a different story, ठीक है। बेटा यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया है? मुझे सबसे लबैक चाहिए, आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीवन कि ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, राइट? और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स नेशनल रिसोर्सेज पे घूम रही है, पूरी पॉलिटिकल पावर एंड वर्ल्ड डोमिनेंस इस चीज पे घूम रही है, ठीक है। वेल डन मिस्टर रायन, थैंक यू, गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मसला ये है कि यार वी हैव अ वेरी बिग एपेटाइट, हम हर चीज खा जाते हैं। सर आप थोड़ा रिपीट कर दें, माय नेट इज वेरी स्लो। अच्छा, मैं गानूर कहाँ से रिपीट कर दूं? If you would be kind enough to tell me where do I need to repeat it from, or do you want me to give a recap? Okay, beta, the quantity of resources, can we supply more resources? That question is divided into two things, two parts. There are some natural resources जिनकी सप्लाई बढ़ सकती है, जिनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। जिन रिसोर्सेज की सप्लाई बढ़ सकती है उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनकी सप्लाई दोबारा नहीं बढ़ सकती, एक दफा कंज्यूम कर दिया तो फिनिश, उनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। रिन्यूएबल रिसोर्स वो जो कि आप कंज्यूम करेंगे तो दोबारा उग सकते हैं। फ्रूट्स दे कैन ग्रो बैक अगेन। शीप पे वुल होती है, आप वुल एक दफा उस पर शेव कर लें, दोबारा वुल उसके ऊपर आ सकती है। कॉटन आप एक दफा प्लग कर लें, दोबारा कॉटन उस पौधे पे आ सकता है। फिशेस आप एक दफा फिश कर लें एक सर्टेन अमाउंट, नीचे जो एग्स और हैचलिंग्स हैं वो कल को फिश बन जाएंगी दोबारा, और दोबारा आपके पास फिशेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, और कुछ ऐसे इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ऐसे महीने हैं जिनके अंदर फिशिंग को मना फरमाया है, क्योंकि उस पीरियड के अंदर बच्चे जो है वो बड़े होते हैं। और मैं भी आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस मजीद क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ऑयल आ जाता है, जितना दुनिया में ऑयल आना था वो आ चुका। गैस आ जाता है, एक्सक्यूज मी, एंड गैस के जो सबसे बड़े रिजर्व्स हैं वो रशिया में है। कोल, जितना आप कोल माइन और एक्सकवेट करेंगे, ठीक है। कोल इज थर्मल पावर। कोल किस लिए इस्तेमाल होता है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, थ्रू हीट। और इसीलिए जितना कोल आप इस्तेमाल करेंगे कोल कम होता जाएगा। तो पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम थर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ताकि उन कोल की जो क्वांटिटीज हैं वो कम ना हो, ठीक है, ज्यादा तेजी से उनमें कमी ना आए। ये क्लियर हो गया मानू? आर यू नाउ विद अस? There is an issue. The issue is that every one of us has a very big appetite and we actually do not know when to stop, ठीक है। We do not know when to stop. तो हम इस वजह से क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि समटाइम्स रिन्यूएबल एनर्जी
can be converted. Yeah, renewable, sorry, energy cannot, renewable resources can be converted into non-renewable resources. Into non-renewable resources. ऐसा होता है कि आप अपने renewable resources को non renewable resource में convert कर सकते हैं. कैसे convert कर सकते हैं? कैसे convert कर सकते हैं? आए आपको एक साहब से मिलाएं. आए आपको एक साहब से मिलाएं. Just give me a sec. I want to and this is known as let me turn this back on. And guys, we are. Why would we want to do that? Good. Why would we want to do that? That is such a good question. Ta-da! Guys, meet your worst fish's nightmare. If you are a fish, then this should be your worst nightmare. Beta, this is known as bottom trawling. Bottom trawling. I want you to look at something. This is a size of a ship or a boat, a big boat. And this is the net. What does this net do? Is this net goes deep into the ocean floor. और वहां से वो सारी fishes को इकट्ठा करने की कोशिश करता है. Now the big fishes, they swim near the surface, right? But the small fishes and the hatchlings and the eggs, they get trapped in this big net क्योंकि ये जमीन को साफ करता है. ये पूरी जमीन, can you see this kind of digging marks? ये पूरी जमीन, it has completely ripped apart the ocean floor. ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने डिगर चलाया, एक्सकवेटर चलाया. It has taken out everything which was there. And you have fishes and fishes. So as the demand for fishes will increase, you will start to consume more fishes. And you will also start consuming those fishes which you should not have consumed at that point in time because they were too young to be consumed. So overfishing, over exploitation of resources, say, just look at this. If I'm not mistaken, पिछले साल we consume as the people of the world, we consume 100 million sharks, right? अभी देख लेते हैं shark hunting. And why do we eat shark? Why do we get sharks? Because of this, the shark fin soup and other things. इसको finning कहते हैं. This sells at a very high price. Okay, this has a very high price, fetches you a very high price because it is a delicacy. It has other things. So even if we discard the shark, we just keep the fins and we throw the shark into the water. ये फाइंडिंग नीमो में देखा था जी, बिल्कुल फाइंडिंग नीमो में देखा था. आई एम ग्लैड दैट कार्टून्स आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन आवर करंट अफेयर्स. बट या बिल्कुल सही है. शार्क हंटिंग एक्स, इफ आई hunting facts, if I approximately 100 million sharks are killed globally each year. And one of the major incentives for this is the shark fin trade. Why? Because the shark fin sells at such a high amount, such a high price because of the shark fin soup. एक shark fin soup के लिए आपको तकरीबन 1 या 1.5 मतलब for every 5
soup bowls you consume of shark fin soup, I guess you kill one shark. So that means एक फैमिली जाके अगर किसी होटल में शार्क फिन सूप ऑर्डर करती है तो उसके लिए एक शार्क को जान देनी पड़ेगी, ठीक है. दैट इज द ऊपर ऊपर का नंबर, सिर्फ आपको समझाने के लिए. So when you are, and ये इसलिए because of your changing preferences, needs and wants. Just because you can afford something, I also want to have that, and I have that preference. ठीक है, और पैसा आ गया तो now I will start consuming that. ठीक है. मानूर ने एक सवाल मुझसे पूछा था, सर why would we want to do that? Why would we want to convert our renewable resources into non-renewable resources? बेटा, we do not want to do that, but our habits make us do that. शादी के खाने के ऊपर क्या आपने आज तक कोई प्लेट नहीं देखी जिसके अंदर खाना ना बचा हुआ? क्या लेने वाले को ये अंदाजा नहीं था कि वो क्या ले रहा है? क्या लेने वाले को ये अंदाजा नहीं था कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है? लेने वाले को ये भी पता था कि वो क्या खा रहा है और उसको ये भी पता था कि वो कितना खा सकता है, उसके बावजूद वो लेता है. Why? Because he can afford it. It's free. He doesn't have to bear the cost, right? उस फिक्र तो क्या हुआ मेरी बला से? You understand? Similarly, we consume more than what we can chew. तो क्या हो गया यार? आपके घर में क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने खरीदी और इस्तेमाल ना की हो? क्या आपके सारे कपड़े इक्वली आप इस्तेमाल करते हैं और पहनते हैं? अगर वो एक ही कैटेगरी के हैं, अस्यूमिंग घर में पहनने के कपड़े नहीं, इसका मतलब ये दैट वी समटाइम्स स्पेंड मोर एंड कंज्यूम मोर ऑन दोस थिंग्स जिसकी हमें जरूरत नहीं होती. So renewable resources can be converted into non-renewable resources, and the way you do that is by something known as overexploitation. Overexploitation. What is overexploitation? Overexploitation happens when you are consuming resources more than what your requirement is. More than your over requirement is. Overexploitation is the direct opposite of sustainability. Sustainability यानी कि अगली नस्ल के लिए हो सकता है शार्क्स हुई ना, आप एक्सटेंड कर दें उनको बहुत जल्दी. You understand? There are lots of species which are going extinct in the world. One of the species which we are very close, and it is going to be a disaster if it happens, is bees. ठीक है, हम अपनी हरकतों की वजह से, because of the kind of things which we do, we are losing bees very fast. And bees are one of the fastest pollinators. जिनकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनते हैं, वो पॉलिनेशन में मदद देते हैं. बात समझ में आ रही है? तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखो, नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल तो कम हो ही रहे हैं, मगर रिन्यूएबल भी बहुत तेजी से नॉन रिन्यूएबल होते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम उनको अपनी जरूरत से ज्यादा खा के खत्म कर रहे हैं. लोग, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दोज फिशेज विच आर वेरी स्मॉल, तो उनको बड़े होने का टाइम ही नहीं मिलेगा. उनको बड़े होने का टाइम नहीं मिलेगा तो उनके बच्चे नहीं होंगे. उनके बच्चे नहीं होंगे तो आगे आने वाली फिशेस की नस्ल खत्म हो जाएगी. राइट? व्हेन देयर विल नॉट बी एनी अदर फिश, हाउ विल इट गिव बर्थ? हाउ विल वी गेट एग्स? हाउ विल वी गेट द सेकंड बैच ऑफ फिश? यू अंडरस्टैंड? बेटा, ये बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा दिमाग खुला या नहीं खुला? ठीक है. इकोनॉमिक्स में एनवायरनमेंट का मजा आया आपको? नई चीजें सीखी कुछ आपने? राइट? एवरीथिंग यू डू इन द वर्ल्ड यार, एवरीथिंग यू डू हैज अ रिपल इफेक्ट. द बटरफ्लाई इफेक्ट जिसको कहते हैं. जो भी तुम दुनिया में करते हो उसका इम्पैक्ट है यार, उसका इम्पैक्ट है. You are in a very tightly knit society. Every person in this world plays his role for the economic ecosystem, and you have to be careful how you use it. ओके, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की हमें कहानी समझ में आ गई. तो यानी कि लैंड की जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है. अच्छा, अब ये चूंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने क्वांटिटी बता दिया, अब मैं चला जाता हूँ क्वालिटी पे. इज देयर अ वे आई कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी में इंप्रूव कर सकता हूँ, जिसकी क्वालिटी में इंप्रूव कर सकता हूँ. यस, आई कैन डू दैट. ठीक है. How can I improve the quality of resources? देखो बेटा, हर दुनिया में, हर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में आम है, मगर पाकिस्तान का आम is different from the आम you will find in America, or you will find in Thailand, or you will find in India for that matter, or you will find in other countries जो वहाँ का खुद का उगा हुआ. And the reason being is
that the quality is varying, different. How can I improve the quality? And the way I can improve the quality of natural resources is by better irrigation. By better irrigation. Better irrigation से क्या होगा? Better irrigation से ये होगा कि I am going to get a better quality of fruit. I am going to get a better quality of plants. I am going to get a better quality of crop. ठीक है? Specialization. Wonderful अहमद रना साहब, जिंदाबाद. तुसी साढ़े फ्रेंड हो भाई. Well done. Specialization वो दूर वाला कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में जोड़ दिया है. हा मजा आ गया. Well done. The more you specialize, the more you are going to be trained. The more you're going to be trained, the more expertise you will have. The more expertise you will have, the better quality resource you will have. लेकिन अभी हम लेबर की स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहे. अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. तो नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? थ्रू फर्टिलाइजर. थ्रू फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर का क्या मतलब है? फर्टिलाइजर वो चीज है, वो कैपिटल इक्विपमेंट है, इंसान का बनाया हुआ है ना फर्टिलाइजर. अच्छा, नेचुरल फर्टिलाइजर भी होते हैं. जो काउ पूप है, इट सर्व्स एज अ फर्टिलाइजर. जी, जो ड्रॉपिंग्स हैं बर्ड्स की, दे सर्व एज फर्टिलाइजर. अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है कि किसी दिन आप गायब हो गए ना, तब भी आपके बाद की दुनिया चल सकती है. ये याद रखिएगा. We take a lot of things for granted. तो फर्टिलाइजर से प्लांट्स की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है, क्वांटिटी भी बेहतर हो सकती है. दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा. और क्या चीज हो सकती है? रेनफॉल मिलेगा. अच्छा, डाइट से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी? डाइट से कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी? क्या डाइट से हीरे अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे? नहीं. लाइफ स्टॉक. डाइट इज गोइंग टू इंप्रूव लाइफ स्टॉक. और लाइफ स्टॉक क्या है? नेचुरल रिसोर्स. एनिमल्स. वेरी गुड. अभी आपने कुर्बानी के अंदर जानवर ज़िबा किए हैं ना, कट्टे. हाँ, पहाड़ जैसे डील डोल वाले, राइट? मालूम चला बुल नहीं, गामा पहलवान चला आ रहा है. हाँ, और फख्र से दिखाते हैं, ये देखो पहाड़ जैसा, ये देखो फलाना जैसा. तो ये कहाँ से बनते हैं भाई? डाइट से बनते हैं. उनको आप क्या खिलाते हैं, राइट? एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो. बट द वे वेट्स बढ़ाते हैं, the way to improve the quality of a particular resource is through diet. The other thing you can do is by latest technology. ये किसने बोला है latest technology? ये किसने बोला है? ये हारिस बलोच साहब ने बोला. वाह 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 वाह. हारिस बलोच साहब, चीते हो तुसी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कैपिटल इक्विपमेंट. You can use capital equipment to improve the quality. Like for example, refining. ठीक है? Latest technology by like refining. Latest mining techniques will improve the quality of the things which are going to be mined. जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इन सब में हो सकती है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली इंप्रूव नहीं करेगा. तो प्राइवेट स्पेंडिंग कर देना. ठीक है बेटा. ये ट्रैक्टर्स जी, तो कैपिटल इक्विपमेंट मेरे ख्याल से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शुड कवर दैट. जी, यहां तक क्लियर हो गए? यहां तक क्लियर हो गए बेटा? आर यू क्लियर हियर? सबसे मुझे चाहिए प्लीज, सिर्फ एक से नहीं, सबसे चाहिए. शाबाश 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 शाबाश. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. आई लव दिस क्लास मैन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. रिस्पॉन्सिव. शाबाश. आई होप यू गाइस रिमेन दिस वे. वेरी नाइस. टच वुड. द अदर वे. तो बेटा हम पहले लैंड को जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है. अच्छा, क्वालिटी ऑफ लैंड खराब कैसे हो सकती है? चलो इसमें तो बात ही नहीं. क्वालिटी ऑफ लैंड खराब कैसे हो सकती है? क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज खराब कैसे हो सकते हैं? हम इसको सारों को ऐसे डाल देते हैं और जो खराब होने वाला है उसको एक जगह पे डाल देते हैं. वेरी गुड. सैलिनिटी, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग. यानी कि क्वालिटी ऑफ, यार क्या पढ़ते हैं आप लोग यार, सारे क्यों पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स? फ्लड्स. वाह 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 वाह. वेल डन. बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, फ्लड्स, राइट? वाटर लॉगिंग.
राइट, पेस्ट अटैक, टिड्डी दल, राइट, खा जाता है क्वालिटी को, क्वांटिटी को भी खा जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कहते हैं कि टिड्डी को, लोकस्ट को, हाँ सुंडी, हम जब बड़े होते थे, बड़े हो रहे थे तो जो है ना वो किड्स, तो वो आता था अमेरिकन सुंडी, और ये इरिगेशन के एड्स आया करते थे पीटीवी पे किसानों के लिए, पेस्ट्स, non seasonal rain, torrential rains. So this is going to reduce the quality of the product. So once we have got that, now अब जो दूसरी चीज जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेटा एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी, और मोबिलिटी दो तरह की होती है। मोबिलिटी So mobility is divided into two parts, right? Mobility is divided into two parts. The first mobility is occupational mobility. बल्कि नहीं, आसान से स्टार्ट करते हैं। The first mobility, mobility का मतलब ये होता है the ease, mobility जहां पे भी मोबाइल का क्या मतलब है? Why is your mobile phone called a mobile phone? Because you can take it anywhere. So please, you have to understand that mobility in economics means change. Can the use be changed? So it is occupational mobility. Can the location be changed? It is known as geographical mobility. Right? This is not a strict textbook definition, but this is just to make you understand. When you are able to change the location of a resource freely, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाओगे, तो ये कहा जाता है जियोग्राफिक मोबिलिटी। ये क्या कहा जाता है? जियोग्राफिक मोबिलिटी। और अगर आप किसी रिसोर्स का यूज चेंज कर दें, वो पहले किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता था और अब आसानी से किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट? पहले किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता था और अब किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट? तो ये क्या है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये क्या है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये क्या है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये क्लियर हो गया, राइट? सो ज्योग्राफिक एबिलिटी, क्या नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज मोबाइल, ज्योग्राफिक मोबाइल, आर दे ज्योग्राफिकली मोबाइल, ये, or are they geographically immobile? Very good. Some are and some not. Which natural resources are immobile? 50-50. Which natural resources are immobile? Mines are immobile. Mines are immobile. मगर उस माइन का जो मिनरल है, उस माइन का जो मिनरल है वो तो इमोबाइल नहीं है, उसको तो आप निकाल कर कहीं और लेकर जा सकते हो, वरना आपके अंगूठी के ऊपर ये डायमंड कैसे आ गया जी? ये अकीक कैसे आ गया? ये फिरोजा कैसे आ गया? राइट? तो इसका मतलब ये द फिजिकल लैंड इटसेल्फ कैन नॉट बी मूव्ड। जी बिल्कुल। सो इमोबाइल, ज्योग्राफिकली इमोबाइल, there are certain things which are geographically immobile. They cannot be taken from where they are actually situated, such as rivers. Rivers एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर जाना बहुत मुश्किल है। रिवर इंडस को उठा के शिफ्ट करके चाइना लेके जाना will be a very hard task. But the water from the river Indus can come to my house. Why? Due to types, due to pipes, due to taps, due to pumps, due to capital equipment. ठीक हो गया? लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक क्या है? मोबाइल, इमोबाइल? मोबाइल। लाइवस्टॉक, एनिमल्स, मोबाइल, इमोबाइल? जी बिल्कुल। लाइवस्टॉक, एनिमल। अगर एनिमल्स इमोबाइल होते तो जू नहीं होते,
क्योंकि पैंडा वगैरह तो चाइना के अंदर होता है, वो पाकिस्तान नहीं आ पाता। हर चीज पाकिस्तान के अंदर हर जानवर तो है भी नहीं, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आई हैव सम रिसोर्सेज विच आर मोबाइल, सम आर इमोबाइल. हाउ कैन आई कन्वर्ट माई मोबाइल टू इमोबाइल? हाउ कैन आई मेक माई इमोबाइल मोबाइल? And that I can make by the use of capital equipment. That I can make by the use of capital equipment. So if I have something known as a capital equipment or tools, जी कैनाल की मिसाल दी है, जबरदस्त आशिर, छा गए आप। खदीजा आपकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आ रहा। कैपिटल, so what you do is you sometimes use immobile resources can be used, or with the help of capital goods can be converted into mobile. For example, I can use canals to transport water from a river to another place. Gas tanks, cheete nahi hai aap. Well done. Canals, gas tanks, trains, trolleys, right? वरना आप कैसे लेके जाएंगे? Is everyone clear on this? Is everyone clear on geographic mobility? जल्दी जल्दी, यस यस, जल्दी से मुझे कर दें, मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, मुझे जल्दी ये करवाना है, फिनिश दिस बेटा. देन occupational, what is occupational mobility? A product whose which can be ऑक्यूपेशनल मोबाइल का क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल मोबाइल में भी दो चीजें आती हैं और इमोबाइल में भी दो चीजें आती हैं। जिनका आप यूज चेंज कर सकते हैं वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, जिनका नहीं कर सकते वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है। ठीक है, ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है। एंड ऑलमोस्ट ऑल, जी, द एबिलिटी टू मूव बिफोर, नहीं बेटा प्रोफेशन तो नहीं आएगा ना। शीप का प्रोफेशन तो नहीं हो सकता ना बेटा, गोट का प्रोफेशन तो नहीं होता, वो तो इंसानों का होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोफेशन तो नहीं होता। यूज, ऑक्यूपेशन का ताल्लुक है यूज से। ऑक्यूपेशनल का मतलब है यहाँ पे यूज, यूजेज, यूज से, राइट। आई हैव नेवर सीन, मतलब आई हैव सीन, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू सी अ फिश व्हिच इज वेयरिंग अ कोट एंड अ पैंट एंड सेज मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नौकरी से निकाल गया। क्या बात हुई है? ठीक है, पहले जो है ना वो मैं पंप पे खड़ा होकर पेट्रोल डालता था, अब मुझे जो है ना वो माइंस में खड़े होकर माइनिंग करनी पड़ रही है। यार ये बताओ, आई एम वेरी ऑक्यूपेशनल, एक जॉब छोड़ी दूसरे पे लग गई, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन से मुराद है यूज, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एंड मोस्टली ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर कैन बी यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स। दे आर वेरी occupationally mobile. They are very occupationally mobile. There are very few natural resources who are occupationally immobile. So occupationally mobile. So for example, समझ नहीं आया? Okay. हारिस बलोच साहब, पानी, वाटर किस चीज के काम आता है? आपको ये पूछना चाहिए किस चीज के काम नहीं आता? क्लीनिंग, क्लीनिंग खत्म हो जाएगी तो कुकिंग, कुकिंग खत्म हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि वाटर के मल्टीपल यूजेस हैं,
वाटर के चिलिंग यानी कि चिल करने के लिए, उसी तरीके से चिल वो वाला चिल नहीं, मतलब कि इज इन फ्रीजिंग यूनिट, ठीक है, एज अ कूलेंट, एज डोमेस्टिक यूज, राइट, फॉर हाइजीन, for domestic cooking, for industrial cooking. So that means water has multiple uses. Water has multiple uses. It is highly occupationally mobile. एक चीज चेंज की दूसरे पे लग गए, क्लीनिंग खत्म हुई मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुई पानी को आपने कुकिंग में इस्तेमाल कर लिया। हारिस बलोच साहब, ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब है वाटर इज एक्सट्रीमली मोबाइल। Immobile are certain resources, और ये बहुत कम है resources. Usually the resources are highly mobile. Natural resources are highly mobile, occupationally mobile. But there are very limited resources जो किसी particular type चीज के लिए आते हैं. Like for example, there would be assets, there would be a particular kind of minerals जो कि उनका एक particular use है. They are so specialized कि वो एक चीज के अलावा किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं हो सकते. So, आपको ये मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहली तो बात आपको ये समझ में आ गई रिकैप में कि लैंड यूजुअली इज जियोग्राफिकली इमोबाइल। अब मैं इसको सम कर रहा हूं, ठीक है, लैंड यूजुअली इज इमोबाइल, कैन बी मेड मोबाइल थ्रू कैपिटल इक्विपमेंट, सॉरी अबाउट द टीज एंड द वाइज, capital equipment. बस मेरे पास 2 मिनट रह गए, मुझे इसको सम अप करना है। So usually it is immobile, can be made mobile through capital equipment. और ये देखिए आपको इसका आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया। Land is usually occupationally mobile. Is usually occupationally mobile. इसके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक यूज खत्म होता है तो दूसरे में इस्तेमाल हो जाता है, दूसरे में खत्म होता है तो तीसरे में इस्तेमाल होता है। गधा से ज्यादा ऑक्यूपेशनल मोबाइल आपको नजर आएगा, राइट, लिफ्टिंग के लिए, प्लोइंग के लिए, डराने के लिए, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं पे गोश्त इस्तेमाल होता है, राइट। सो इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Did you understand today's class? So we covered land today, we covered natural resources today, and inshallah ta'ala when we meet on Monday, we are going to cover the rest of the topics very quickly. I hope you had fun. I will put an assignment and then I'm going to check the assignment which you had given me today and give you the numbers. Thank you so much. Have fun, guys. It was a pleasure teaching you today.